Okay, so let us start with the story which we've already started in the previous class, the shepherd's treasure. So quickly give an overview to the story we've already read. So in the first paragraph, we came to know that there was a shepherd who used to live in a village of Iran. Who is a shepherd? Shepherd is a person who tends or rears sheep and goats. Okay? So he was very poor and he did not even have a cottage of his own. Cottage of his own means a small house. Uske paas kuch nahi tha. He was very, very poor. And moreover, he was not educated. इस पैराग्राफ में और क्या बताया है कि वो एडुकेटेड भी नहीं था. He was not literate. पढ़ा लिखा नहीं था. And reason is also given कि उस time पे schools नहीं होते थे. For there were very few schools in those days. Right? But in the second paragraph, it is told, though he was poor and uneducated, जबकि वो poor and uneducated था, but he was very, very wise. बहुत intelligent था. And he used to understand people's sorrows and troubles. Sorrows means the difficulties, the problems, right? So he was a very good person who could understand to other people's troubles and problems, and he always helped them face the problems with courage and common sense. So with his common sense, with his suggestions, he helped people to face those difficulties. So because of this, people were always coming to him for advice, and he became very famous for his wisdom and good nature. Friendly nature means very nice nature. And when the fame spread around, king also heard it. किंग ने भी सुना उसके फेम के बारे में, उसके के नाम के बारे में. फेम हियर मींस उसका नाम, कि वो बहुत अच्छा है. So king also thought, in next paragraph it's written, king also thought to meet that shepherd, but he did not go to meet him like a king. So it's written, disguised as a shepherd and riding on a mule. One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. So disguise means, मैंने आपको मीनिंग बताया था, हाइडिंग वंस ओन ट्रू आइडेंटिटी, अपनी सही पहचान को किसी वेशभूषा में या किसी मेकअप में छुपा लेना. ठीक है, तो उसने कैसा मेकअप किया, कैसी वेशभूषा डाली, एक शेफर्ड की. किंग एक शेफर्ड की तरह एक साधारण से खच्चर पर, म्यूल इज अ काइंड ऑफ अ कैटेगरी ऑफ हॉर्स और डोंकी ओनली, राइट. इनका कॉम्बिनेशन होता है. सो इस पे वो शेफर्ड से मिलने गया. फिर इन द ऑन द नेक्स्ट पेज इट्स रिटन कि as soon as the king who was disguising as a shepherd reached the shepherd's cave, तो उसने शेफर्ड ने, जो एक्चुअल शेफर्ड है, उसने उस किंग का वेलकम किया. उसको whatever he had, the meager meal, meager means less in quantity, थोड़ी. ही वॉज नॉट पुअर ना कि उसको बहुत सारे खाना पीना ऑफर कर सकता. उसके पास जो भी था, ही गेव दैट शेयर out of it to that traveler. Who was a traveler here? The king who was disguised as a shepherd, जो shepherd का वेश धारण करके king इससे मिलने आया हुआ है. ठीक है, so he was given hospitality and wise conversation. So the king was really impressed. जब वो उसके पास शेफर्ड के पास किंग ठहरा, तो उसने देखा कि लाइक ही इज सो नाइस, द शेफर्ड इज सो नाइस. हॉस्पिटैलिटी मींस वेरी वार्म वेलकम, वेरी वार्म बिहेवियर, जैसे हम अपने गेस्ट के साथ करते हैं, तो उसने बहुत अच्छा किया बिहेवियर किंग के साथ. मोर ओवर द कॉन्वर्जेशन विच दे हैड, it was wise. King noticed that the person is very intelligent. उसके बाद next paragraph में हमको बताया है, now the next day king decided to go and he took the permission to leave from the shepherd. उसने कहा अब मैं जाऊंगा, right. Now here again something happened that king got really impressed. क्या हुआ कि जैसे ही king ने उस shepherd से जाने की परमिशन मांगी कि ओके, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड नाइस बिहेवियर, नाउ प्लीज गिव मी परमिशन टू लीव, है ना. तब शेफर्ड ने क्या जवाब दिया,
thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit. So he was so intelligent कि उसको पता था ये शेफर्ड साधारण शेफर्ड नहीं है, ये किंग है जो मुझसे मिलने आया है, राइट? सो उसने बोला थैंक यू योर मेजेस्टी, आपने मुझे ऑनर किया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट मतलब किसी बड़े आदमी के आने से जैसे आप कॉम्प्लीमेंट फील करते हो ना, प्रेज फील करते हो, तो उसका ये तो मेरा धन भाग है कि आपने मुझे ये मौका दिया आपकी सेवा करने का, आप मेरे घर में आए। सो लुक, जस्ट नोइंग दिस द किंग वाज astonished as well as pleased. मैंने आपको उस दिन भी मीनिंग बताया था, astonished means surprised, क्योंकि किंग ने तो बताया नहीं था मैं किंग हूं, राइट? लेकिन जब शेफर्ड ने बोला कि थैंक यू मेजेस्टी, तो किंग बहुत हैरान हुआ कि इसको कैसे पता चला कि मैं किंग हूं, right? So he was astonished. Astonished means surprised, as well as pleased, happy भी हुआ. And he thought to himself कि ऐसे लोग तो मुझे चाहिए अपने लिए, for me to work. So he thought to himself that I need people like him to work for me. And then thinking that he appointed this shepherd as the governor of a smaller district. उसने उसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया, राइट? अब obviously when a small shepherd will become a governor, it is going to be like a different thing. जो दूसरे अमीर लोग हैं हो सकता है उनके लिए जेलसी का पॉइंट बन जाए, या लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन ही, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इट्स रिटन, व्हेन ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी। यहाँ ही किसके लिए लगा है? शेफर्ड के लिए। जब ये सिंपल शेफर्ड रोज टू पावर एंड डिग्निटी, he was still humble as ever. उसमें कोई घमंड नहीं आया, वो जैसे पहले था एज अ कॉमन पर्सन, वैसे ही एज अ गवर्नर भी वर्क करता रहा. He was as polite as he was. Humble means very polite. So जब आपके कोई इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, आपके मंत्री हो, फिर भी वो आपसे अच्छे से व्यवहार करें, आपके दुख को समझें, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो आपको कैसा लगेगा? वो व्यक्ति अच्छा लगेगा. So similarly, people really loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. So उसकी जो लोकप्रियता थी वो बढ़ती गई, राइट? वो लोग उसको खूब पसंद करने लगे एज अ गवर्नर, और पूरी र्यूमर फैल गई आसपास कि दिस गवर्नर इज रियली वेरी गुड. सो जो उसका फेम था, उसका नाम था एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर, स्पून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. सो इट स्प्रेड फार एंड वाइड. नाम पूरा चारों तरफ फैल गया कि ये तो जो गवर्नर नया बना है ना, बहुत जस्टिस वाला है और बहुत अच्छा है. अब ऑब्वियसली जब किसी का नेम इतनी क्विकली फैले तो देयर आर सम पीपल हु गेट जेलस. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द स्टोरी जो हमने पहले जहां छोड़ा था. नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस मींस अदर एरियाज. एक राजा के छोटे छोटे कई हिस्से होते हैं ना, कई राज्य होते हैं. जैसे हमारे कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स हैं. मोदी जी टॉप राजा हो गए, राइट? वैसे तो हमारी डेमोक्रेसी है, इट्स नॉट द राजा वाला स्टाइल, अथॉरिटी नहीं है. लेकिन अगर हम उसको उस सिनेरियो में देखें तो मोदी जी टॉप के हो गए और पीछे सीएम्स हर स्टेट का अलग है. सो इसी तरह गवर्नर हर स्टेट का अलग है ताकि हम अच्छे से मैनेज कर सके. तो प्रोविंसेस मींस other areas. So जो the governors of other provinces थे, they grew terribly jealous. Terribly jealous, यहाँ terribly का मतलब है very very jealous. उनको इतनी ज्यादा jealous हो गया कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था. They got terribly jealous of him and began to talk to the king against him. और इतने jealous हो गए तो कि king के भी कान भरने शुरू कर दे. They started poisoning the ears of the king. और क्या कहते थे? They said he's very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as a tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. तो ये सब बातें राजा को कहते थे जाके. मैं एक बार समझाती हूँ. ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ गवर्नर, आपका जॉब होता है लोगों से टैक्स को जमा करना, किंग के खजाने में देना, और फिर किंग उस खजाने से लोगों की मदद करते हैं,
राइट। सो इन गवर्नर्स ने, जो बाकी राज्यों के गवर्नर्स हैं, उन्होंने, क्योंकि वो जेलस थे, उन्होंने किंग को क्या कहना शुरू कर दिया कि ये ना हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है। राजा जी ये बहुत बेईमान है, ये जो भी टैक्स कलेक्ट करता है ना उसमें से थोड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता है, और अगर नहीं रखता तो देखो आप सोचो, आइए हमेशा ऐसे एक ट्रंक सा एक वो लेके क्यों चलता है आयरन चेस्ट। सो राजा के मन में उन्होंने क्या डाल दिया, शक डाल दिया, डाउट डाल दिया कि हाँ आयरन चेस्ट तो ये हमेशा जहां जाता है वहां लेके जाता है, हो सकता है इसमें खजाना भर रहा हो, राइट। तो उन्होंने बोला ना कि इसमें इसका ट्रेजर है। ट्रेजर मतलब ये जो भी टैक्स लेता है उसमें से जो चुराता है वो इसमें रख लेता है सीक्रेटली, चुपके से, राइट। आफ्टर ऑल they said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better। और साथ में उसका मजाक भी उड़ाते हैं राजा के सामने कि राजा जी आप देखो है तो वो शेफर्ड ही ना, साधारण सा शेफर्ड है, आज गवर्नर बन गया। मॉकिंगली मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए, उन्होंने उसको अभी भी एज अ गवर्नर एक्सेप्ट नहीं किया, कहते है तो शेफर्ड ही ना, यही करेगा, राइट। सो इस तरह से दे वर पॉइजनिंग द ईयर्स ऑफ द किंग। नाउ लेट्स सी अब किंग पे कोई असर पड़ता है या नहीं, आगे स्टोरी में पढ़ते हैं। At first the king did not pay attention to these reports। शुरू शुरू में तो उसने ध्यान नहीं दिया ये जो उसके पास फीडबैक आ रही थी, है ना। जैसे आपका कोई ट्रस्टेड फ्रेंड होता है, शुरू शुरू में अगर कोई दूसरा आपके फ्रेंड के बारे में गलत बात तो आप इग्नोर कर देते हो, छोड़ ये गलत ही कह रहा होगा, आप ट्रस्ट नहीं करते हो। तो राजा ने भी ट्रस्ट नहीं किया इन चीजों पर। बट how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd। लेकिन कितनी देर इग्नोर कर पाता, जब आपको एक ही बात कई गवर्नर्स आके बार 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 बम्बार्ड कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो थोड़ा सा शक तो हो ही जाएगा ना, राइट। आप एक की नहीं सुनोगे, दो की नहीं सुनोगे, लेकिन अगर आपकी पूरी क्लास आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में वही बात बार बार आके आपको कहे तो आपको थोड़ा सा तो डाउट हो जाएगा। तो राजा जी को भी थोड़ा सा डाउट हो गया। सो वन थिंग वाज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड the new governor did carry an iron chest with him all the time। एक बात तो राजा ने नोट कर ली कि हाँ ये बात तो सच है कि शेफर्ड हमेशा ही अपने साथ एक आयरन चेस्ट लेकर चलता है। So one day the new governor was summoned। समन मतलब बुलाना। जब लीगल नोटिस होता है ना, जैसे कोर्ट से अगर हमें कोई नोटिस आए तो उसको कहते हैं समन। क्या कहते हैं, एक होता है कॉल, कॉल मतलब सिंपल बुलाना, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट, लेकिन द जज समन्ड मी। समन मतलब लीगल नोटिस, कोर्ट के थ्रू जो नोटिस आया, तो राजा जी ने उसको नोटिस भिजवाया, बुलवाया, संदेशा भिजवाया। सो the new governor was summoned to the palace। Palace बुलवाया गया। He came riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back। वो आया, और जब वो आया सब बहुत खुश हो गए। Why were everyone happy? Delight means happy। क्योंकि आज भी वो अपने साथ अपनी आयरन चेस्ट लाया था। उन्होंने यही तो डाला था ना कि आयरन चेस्ट में कुछ है। सो वो सब देख के खुश हो गए। फासन मीन्स टाइटली अटैच्ड, राइट। उसकी कैमल की पीठ पर वो आयरन चेस्ट अच्छे से बंधी हुई थी, फास्टेंड। नाउ द किंग वाज एंग्री, ही थंडर्ड। थंडर्ड मतलब बहुत लाउडली शाउट किया। Why do you always carry the iron chest with you? What does it contain? क्वेश्चन कर दिया उसको कि हमेशा क्यों लेके घूमते हो, इसमें क्या रखा है तुमने। The governor smiled। ये शेफर्ड गवर्नर जो है उसने आराम से स्माइल किया। He asked a servant to bring the chest। उसने अपने सर्वेंट को कहा कि जाओ चेस्ट लेकर आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out। To be found out is a note worth noting। To be found out मतलब राज खुल जाना, अब पकड़ा जाएगा।
सब सोच रहे थे कि अब आयरन चेस्ट खुलेगा, इसमें से इसका चोरी किया हुआ माल निकलेगा और ये फंस जाएगा और इसको नौकरी चली जाएगी। तो सब ये सोच के बैठेंगे कि ऐसा होने वाला है। So everybody was eagerly waiting for the shepherd to be found out कि पकड़ा जाए. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. लेकिन जो वो सोच रहे थे उससे भी बड़ा सरप्राइज मिला इनको. इवन किंग भी सरप्राइज्ड हो गया कि जब वो आयरन चेस्ट खुला तो सिर्फ कोर्टियर्स ही नहीं जो वेट कर रहे थे पकड़े जाने का इसके, वो भी हैरान हो गए, किंग भी हैरान हो गया. तो देखते हैं ऐसा क्या था उस आयरन चेस्ट में जो सब इतने अमेज्ड हो गए. अमेज्ड और एस्टोनिश्ड मींस very much surprised, right? So they got really surprised when the chest was opened. And let's see what was there in the chest. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. ना कोई उसमें सोना मिला, ना चांदी, ना कोई सिक्के, कुछ नहीं मिला. सिर्फ क्या मिला? एक फटा पुराना ब्लैंकेट. उस आयरन चेस्ट में क्या था? एक फटा पुराना ब्लैंकेट. ये देखकर सभी हैरान हो गए, इवन किंग भी हैरान हो गया. अब आपको क्यों लगता है वो क्यों हैरान हुए होंगे? लेट्स सी. क्योंकि देखो जब कोई गवर्नर है, एक मन में क्वेश्चन आएगा ना, इतना बड़ा गवर्नर होके साथ में एक फटा पुराना कंबल लेके घूम रहा है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है ना. सो अब आगे देखिए वो क्या कहता है. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर. यहाँ मास्टर किसको रेफर किया है? किंग को. This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me. Shepherd governor कहता है that see my lord, this is my majesty, this is my only treasure. यही मेरा असली अकेला खजाना है जो मैं हमेशा लेकर चलता हूँ. अब king was already surprised, so he asks, but why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district, the king asked. किंग ने कहा, अरे तुम तो गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के, एक साधारण सा फटा पुराना सा कंबल लेके घूमते हो, ये क्या बात हुई, है ना. सो ही वाज रियली सरप्राइज्ड, सो ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन. क्या जवाब दिया शेफर्ड ने? टू व्हिच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी. बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, पोलाइटनेस के साथ शेफर्ड ने जवाब दिया, this blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloaks. Cloaks क्या होते हैं? जो एक कपड़े होते हैं, जो हमारी आउटफिट होती है. जब हम प्रॉपर, राजा की एक प्रॉपर आउटफिट होती है ना, वो बड़े 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 फ्लोर को टच करते हुए कपड़े पहनते हुए चलता है. सो क्लोक इज वो जो बेसिक उसकी पोशाक मिली थी उसको गवर्नर बनने पर, जो किंग ने उसे दी थी कि भाई अब तुम इस तरह के कपड़े पहनोगे, जो उसे मान दिया था गवर्नर का. तो कहता है कि ये मेरा अकेला फ्रेंड है जो मेरा साथ तब भी देगा अगर आप मुझसे मेरी ये गवर्नरशिप या ये ओहदा ले लें, वापस भी ले लेंगे ना, तो भी ये जो मेरा फ्रेंड है ओल्ड ब्लैंकेट, ये मेरा साथ हमेशा देगा. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. Embarrassed मतलब really upset, उन्हें शर्म आई. Embarrassed here means felt ashamed. उनको जो कोर्टियर्स, जेलस कोर्टियर्स थे, उन्होंने तो कितना गलत गलत कहा हुआ था. जब इतना सुंदर जवाब उसने दिया कि अगर आप हम मेरे से ये पोजीशन ले लोगे तो ये कंबल ही मेरा साथ देगा. जब ऐसा जवाब किंग ने सुना तो ही गॉट रियली प्लीज्ड, और ये जवाब जब बाकी जेलस कोर्टियर्स ने सुना तो दे गॉट रियली एम्बैरेस्ड, दे फेल्ट अशेम्ड. The jealous governors became really embarrassed. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब उनको समझ आ गई ये जो शेफर्ड गवर्नर है सच में बहुत ही अच्छा इंसान है. द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट,
दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान, हम्बलेस्ट सबसे पोलाइट, राइट। द किंग मेड हिम, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है ना, रिजल्ट ये हुआ, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उसी दिन उसको एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर